In today's lesson, we will study about lone pairs and bond pairs. I've told you about that in the previous lessons as well when I was making covalent bonds. But let me repeat it again. Bond pairs are the electron pairs which are being involved in the bonding. So you can also call them as shared pair of electrons between the two atoms. These are called the bond pairs, and we represent them as a dot and cross in dot cross draw diagrams such as Lewis structures. They are represented by dot and cross. They are called bond pairs. But the central atom, on central atom, there are electron pairs which are not involved in the bonding, but are in the form of pairs. We call them as lone pair of electrons, or you also call them as unshared pair of electrons on the central atom. Such as in oxygen, you see it has two electron pairs shared, one with each oxygen, each hydrogen. These are called bond pairs, whereas each oxygen has two pair of electrons which are not involved in the bonding. And these two pair of electrons, one above and one below, we call them as lone pair of electrons. So this terminology is quite used in our A-level course because this terminology will be used in explaining shapes of molecules, etc. So please, I need to introduce it to you, the lone pairs and bond pairs. After doing that, let me introduce you to some molecules which are either octet deficient or some have octet expanded or octet extended. These molecules are very special. Octet deficient molecules का नाम से पता लग रहा है कि these are the molecules in which central atom does not complete its octet. Octet deficient का मतलब है इसका octet is not complete. For example, if you take BF3, you can see that boron has 3 electrons in its outermost shell. The electronic configuration of boron, the electronic configuration of boron is, the electronic configuration of boron is, if you remember, in first shell it has 2 electrons. In first shell it has 2 electrons. Then in the second shell it has 3 electrons. So 2, 3. So it needs 5 more electrons to complete its octet. Whereas if I'm joining boron with fluorine. So fluorine's electronic configuration is 2, 7, 2, 7. So it needs 1 electron more to complete its octet. तो अगर आप if you overlap 3 fluorine atoms with 3 boron, तो boron जो है वो 3 covalent bond बनाएगा. इसकी electronegativity difference between boron and fluorine is less than 1.7. So we are going to form a covalent bond, and overlapping हमें करनी है. But the problem is that when boron forms 3 single covalent bonds, as you can see, dot and cross between if you can see a dot and cross here, ये एक dot and cross बना हुआ है. This is one bond, this is another bond, and this is a third bond here. तो third bond जो है उसमें भी there are now 3 covalent bonds that are formed. So 3 single covalent bonds are formed between boron and fluorine. By doing so, fluorine's octet are complete. But if you see, boron has an issue. Boron now has 3 bond pairs. It has 3 bond pairs, and 3 bond pairs equal to 6 electrons. तो 6 electrons जो हैं, इसका मतलब है इसका its octet is not complete. So boron does not have complete octet. So ऐसे molecules, such molecules in which central atom after making bonds does not able to fulfill its outermost shell, we call it as electron deficient molecule. Similarly, there is another example of AlCl3. AlCl3, aluminum trichloride. तो बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगी जैसे एल्यूमिनियम की साथ फ्लोरीन BF की फ्लोरीन से बनी हुई है. इफ आई राइट एल्यूमिनियम in the center
and I write 3 chlorine atoms around it. And there is another third chlorine. So if I put electrons here, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर aluminum has suppose has 3 electrons in its outermost shell. I put them as a circle. Aluminum has 3 electrons in its outermost shell. When it overlaps with chlorine, chlorine will put in 1 electron for each chlorine atom. The remaining 3 pair of electrons of chlorine remain unpaired. तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इस तरह बाकी इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया तो क्लोरीन के तो ऑक्टेट तीनों के कंप्लीट हो गए हैं. बट एल्यूमिनियम जस्ट लाइक बोरॉन हैज नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो मॉलिक्यूल है AlCl3, just like aluminum, just like BF3, its octet is not complete. So aluminum के पास भी outermost में we see aluminum has now 6 electrons. Aluminum के पास अब 6 electrons हैं और इसका outermost shell complete नहीं है. So AlCl3 is also electron deficient molecule, as I've just drawn for you. तो इसके साथ भी ये इशू है, BF3 के साथ भी ये इशू है. देख लें, ये मैंने आपके सामने AlCl3 की डायग्राम जो है वो आपके सामने आई हुई है. Each aluminum after sharing its electrons with chlorine, 3 separate chlorines, 3 single covalent bonds are formed, but its octet is not complete. तो ये एल्यूमिनियम के एग्जांपल भी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के एग्जांपल में भी ऐसे ही था. Whereas expanded octet, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के लिए अगर आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ें, इन एक्सपेंडेड ऑक्टेट स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसा इन एक्सपेंडेड ऑक्टेट वी विल सी that the central atom after making bonds will have more than 8 electrons. तो इसकी एग्जांपल में PCl5 भी आएगा और SF6 भी आएगा. PCl5 and SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 भी इसके अंदर आएगा. तो अगर मैं आपको इफ आई शो यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फर्स्ट शेल हैज 2, second shell has 8, and third shell has 5 electrons. And the third shell की electronic configuration अगर आप देखें तो वो that electronic configuration in terms of subshells is 3s2 and then 3px में एक होगा. 3px has 1 electron, then 3py has 1 electron, and then 3pz has 1 electron, and 3d is totally empty. And you know 3d has 5 orbitals. तो मैं उन पे नाम अभी नहीं लिख रहा, वो we will do that in A2. जैसे dxy, dxz, 3dxy and then 3dxz, ये सब खाली पड़े हुए हैं. 3dxz and then you have so on. These are all vacant. तो होता ये है कि अगर आप फॉस्फोरस का PCl3 बनाते हैं इन PCl3, तो तब तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि ये 285 को 3 और मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है.
ऑक्टेट कंप्लीट होता है इन PCl3, क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, Px1, Py1 and Pz1. All of them will get 1 electron each, and their octet is complete. But if I want to make PCl5, तो फिर PCl5 कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि इट शुड हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो कैसे होते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिफोर बॉन्डिंग 1 electron from 3s shifts 1 electron from 3s shifts through empty 3d में चला जाता है। इससे अब इसका जो थर्ड शेल है उसकी कन्फिगरेशन कुछ यूँ हो जाती है कि 3s में 1, and we know that half filled subshell is as stable as a fully filled subshell. तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने से उसकी स्टेबिलिटी लॉस नहीं होती। देन 3px में तो 1 था ही, 3py में भी 1 ही था, फिर उसके बाद 3pz में भी एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया है। तो अब आप काउंट करें तो नाउ देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इन सब के साथ क्लोरीन का एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यू विल ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑल ऑफ देम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे इसके अंदर। 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कर देंगे। तो इस तरह करने से आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 5 पहले थे, 5 इसने रिसीव कर लिए, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन इन टोटल हो गए। सो इट्स दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑक्टेट एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। So you see the diagram of PCl5. Phosphorus has made 5 single covalent bonds with 5 chlorine atoms in the diagram on right hand side. जो आप देख रहे होंगे कि ये PCl5 की डायग्राम है। जबकि PCl3 के अंदर इफ वी ड्रॉ PCl3, तो फॉस्फोरस जो है उसके साथ 3 क्लोरीन बनते हैं और एक उस पर लोन पेयर होता है। तो PCl3 अगर आप बनाते हो तो Cl के साथ Cl, phosphorus, Cl, and then another Cl. तो अगर हम इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाएं तो ये क्रॉस, ये डॉट, ये डॉट, ये क्रॉस, और Cl इसमें भी यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस। तो फॉस्फोरस जो है उसने 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, जबकि फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर भी होता है। तो ये PCl3 की डायग्राम थी। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप काउंट करें तो इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक उसके अंदर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोन पेयर एंड देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स। बट जब आप इसकी ऑक्टेट एक्सपेंशन करते हैं तो फॉस्फोरस में चूंकि 3d भी है और फॉस्फोरस इज इन पीरियड 3, इफ यू रीड स्टेप नंबर 4.3, दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर पीरियड 3 एलिमेंट्स एंड बियॉन्ड, मतलब पीरियड 4, 5 और 6 में भी हो सकता है, बट दिस कैन नॉट हैपन इन पीरियड 1 एंड 2। अगर आप कहें जी NH3 है तो वो NH5 भी बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है।
The reason behind is that nitrogen does not have a D subshell in the second shell. So nitrogen has only two shells, 2, 5. But phosphorus has three shells, and in third shell has a vacant 3D subshell, and all the orbitals of 3D are empty. So to expand its octet, what happens is that one electron from 3s is promoted to 3d, and now we have 5 unpaired electrons which can be paired up by 5 chlorine atoms. तो फिर PCl5 भी बन सकता है. This is how we call it as octet expansion. ये octet expansion हो गई है. PCl3 में octet expansion नहीं होती, इसमें octet complete होता है. Period 2 और के जो elements हैं उनमें octet extension cannot happen because they do not have a vacant 3D subshell. अब यही सब कुछ अगर हम SF6 के ऊपर भी अप्लाई करें तो SF6 उसकी बॉन्डिंग क्या है? वैसे तो यूजुअली SF2 बनता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उसकी रीज़न ये होती है कि इफ़ आई ड्रॉ फ्लोरीन देन लेट्स से क्रॉस डॉट सल्फर देन डॉट क्रॉस फ्लोरीन, इस तरह करने से सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है because sulfur has total of 6 electrons in its outermost shell. सल्फर के पास एक लोन पेयर ये है और फिर एक लोन पेयर मैं नीचे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो लोन. तो इस तरह सल्फर जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बाय मेकिंग 2 बॉन्ड्स विद 2 फ्लोरीन एटम्स. तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं रहती और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. इफ़ यू काउंट द इलेक्ट्रॉन इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो SF2 में ऑक्टेट एक्सटेंशन कोई नहीं हो रही और ये एक स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. लेकिन लेकिन अगर SF6 बनाना है तो फिर SF6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो फर्स्ट शेल में इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 electrons, and then in the third shell it has 6 electrons. And the third shell की configuration अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसे है. It has 2 electrons in S2, फिर it has 2 PX में it has 2 electrons, then PY में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन PZ में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3D इज टोटली एम्प्टी. तो अगर हम यहाँ पर 3D का एक लिख लें, 3D का, और फिर 3D का दूसरा भी लिख लें तो हमें इतना ही काफ़ी है. अभी बाकी 3 और हैं, 5 होते हैं टोटल. ये खाली पड़ा हुआ है. तो होता कुछ यूँ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले PX का भी एक ट्रांसफ़र होता है टू 3D, फिर S का जो 2 है उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है टू 3D. So now what happened is that because 3D was empty, so we see a promotion of electrons from PX and S. तो उससे अब नई कंडीशन ये बनती है कि S में 1 इलेक्ट्रॉन है, PX में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, PY के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, देन PZ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन 3D के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और फिर एक और 3D के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है. सो नाउ इट हैज़ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप इन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 6 फ्लोरीन एटम से लेकर आओ, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 फ्लोरीन एटम जो हैं वो आके इसके साथ जुड़ जाते हैं एंड मेकिंग 6 कोवलेंट बॉन्ड्स. तो आपका SF6 बनता है. जैसे कि PCl5 बना था वैसे ही SF6 बनाएंगे, उसमें एक सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन एटम्स जो हैं ओवरलैप हो जाएंगे. तो इन दिस केस यू सी 6 उसके पास पहले थे, 6 उसने और गेन किया, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं सल्फर के पास. This phenomenon is called octet expansion. This phenomenon is called octet expansion.
This can happen in molecules, in atoms, in central atoms of third period and onwards. So I hope it's all clear to you. Now we are moving towards our next point, that is coordinate covalent bond or dative bond. We have just seen that BF3 or AlCl3, these are electron deficient molecules, and boron or aluminium, after making their bonds, does not have a complete octet. उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और उनको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वी हैव सीन टू सेटिस्फाई दिस नीड, we have seen another type of covalent bond, which is a covalent bond, but it is formed in slightly unusual way, and that bond is called coordinate covalent bond or dative covalent bond. In such cases, we will see all the properties will remain same as covalent bond. The electron pairs will be shared. There is no loss and gain, but the sharing of electron is done in slightly unusual way. Normal covalent bond is formed by mutual sharing of electrons. Mutual sharing का मतलब ये है कि one electron is provided by one atom, the other atom also provides one. If two electrons are provided by one atom, the other atom also provides two electrons. So we have dot and cross, dot cross, dot cross. So equal contribution of electrons. But in dative bond, what we see is that one atom will provide its lone pair, will provide, or you can say donate its lone pair to the other atom which needs a lone pair. And that lone pair donation doesn't mean loss or gain. Donation mean कि एक कहता है, one says I give you a lone pair, the other says I am ready to accept that lone pair because I'm in need of a lone pair. But the first atom says I am not giving it to you. We will share it. This pair of electron जो कि मेरे पास, which was lone pair for me, when I'll come closer to you, we will share it and I'll turn it into a bond pair. And by doing this, जो lone pair, the atom that is giving a lone pair, that is giving or sharing a lone pair, complete pair of electron, its electrons remains complete, nothing is lost. But the other atom which has lacking of electron pair will also satisfy its octet, and in doing so, both the atoms will form another covalent bond. But this covalent bond is slightly unusual क्योंकि एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं इन शेयरिंग, और दूसरे एटम ने कंट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं किया और वो रिसीविंग एंड पे बैठा हुआ था. जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अगर एग्जांपल लें तो BF3 जो है वो कहता है जी बोरॉन मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है कि मैं शेयर कर सकूं किसी के साथ, पर मुझे आई नीड 2 मोर. बट इफ आई ब्रिंग, लेट्स से आई ब्रिंग अमोनिया क्लोज टू इट, तो अगर आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया हैज 3 पेयर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड पेयर्स, एंड देयर इज वन लोन पेयर इन अमोनिया. तो अगर मैं अमोनिया के पास, यू सी यहाँ पर एक जो है वो आप देख रहे हैं कि ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो अगर मैं इसके पास बोरॉन को ले आऊँ, अगर मैं इसके पास बोरॉन को ले आऊँ जिसने आगे डॉट एंड क्रॉस करके फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, मैं इसको क्रॉस डॉट फ्लोरीन, ठीक है जी, और लेट्स डू इट अगेन. इफ आई ब्रिंग boron trifluoride, so if I have one fluorine here and then dot cross boron and then cross dot fluorine, और अगर हम इसको नीचे ले आते हैं, there is another cross dot and then
There was another fluorine here. तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ BF3. अगर मैं BF3 को इफ आई ब्रिंग इट क्लोजर टू अमोनिया, व्हाट अमोनिया विल डू इज कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन के साथ शेयर कर लेगा. इस तरह करने से अमोनिया का ऑक्टेट जो पहले से नाइट्रोजन का कंप्लीट था वो कंप्लीट ही रहेगा, लेकिन लेकिन बोरॉन के 6 में जब 2 और ऐड होंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड NH3BF3 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड. अब ये जो एरो से दिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये पेयर शेयर्ड ही है, ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसमें शेयरिंग में व्हाट वी हैव सीन इज दैट नाइट्रोजन हैज contributed both the electrons for sharing and boron has contributed nothing. But this pair of electron is now belonging to both boron and nitrogen, and in this way their octet is complete. So this is one example of dative covalent bond. Let's take another example of dative covalent bond in ammonium ion. So if you see on the right hand side, ammonia has again 3 covalent bonds and a lone pair is there, 3 bond pairs and 1 lone pair. And if I bring hydrogen ion close to it, this hydrogen ion is usually present in acid medium. एसिड्स में आपको पता है कि हाइड्रोजन आयंस होते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन, but hydrogen ion has no electron and it needs 2 more electrons. So if I pass ammonia gas through an acid, तो अमोनिया वहीं रह जाती है और एसिड से बाहर नहीं आती. What is the reason that ammonia remains behind in the acid is that कि जो अमोनिया का लोन पेयर है, जो आप लोन पेयर यहाँ देख रहे हैं, वो लोन पेयर जो है वो देखता है कि हाइड्रोजन आयन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम. So hydrogen needs 2 electrons, and nitrogen says, okay, let's come closer and share, but we will share in such a way कि लोन पेयर मेरा जो है वो आप बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दोगे. तो अभी बिफोर बॉन्डिंग अमोनिया हैज बिफोर बॉन्डिंग अमोनिया हैज 3 bond pairs and 1 lone pair. We can write them as abbreviation, but after making a dative bond, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये dative bond बन गया. This is a dative bond. After making a dative bond, now nitrogen जो है उसने जब dative bond बनाया, तो अब there are ammonium ion is formed, and in ammonium ion there are 4 bond pairs and कोई lone pair नहीं है, 0 lone pair. सो इन दिस वे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन आयन की स्टेबिलिटी को जो है अचीव करवा दिया है. अब अगर आपसे वो कहे कि इसमें सर्कल करें, सर्कल द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की पहचान ये होती है कि वो होता तो शेड पेयर है, लेकिन उसके दोनों जो साइंस हैं या तो वो दोनों डॉट्स होते हैं, या तो वो दोनों डॉट्स होते हैं, या फिर वो दोनों क्रॉस होते हैं. either both are dots or both are cross. लेकिन usual covalent bond is dot and cross. Usual covalent bond is dot and cross. तो जो dative bond होता है it is just 2 dots or 2 crosses, whereas a covalent bond is dot and cross. तो इसमें दोनों का सिंबल सेम होता है, वहां से हम इसको पकड़ लेते हैं. तो अमोनियम आयन के अंदर भी हमें we see a dative covalent bond. नेक्स्ट डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई वुड लाइक टू शो इट टू यू. वो है Al2Cl6. एल्यूमिनियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज AlCl3
बिकॉज एल्यूमिनियम एटम डज नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। तो वो क्या करते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अनदर electron pair donor, what aluminum chloride molecules do is that they are self dimerize, खुद अपने आप के साथ डायमराइज कर जाते हैं। और उसमें आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल का जो एल्यूमिनियम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से कि क्लोरीन से, ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो रिसीव कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम को अपना लोन पे डोनेट कर देता है। ऐसे ही पहले का क्लोरीन जो है वो दूसरे के एल्यूमिनियम को लोन पे डोनेट कर देता है। और फिर आप देख लीजिए कि यू विल सी दैट दिस इज अ डेटिव बॉन्ड हेयर। दो डेटिव बॉन्ड बन गए हैं इसके अंदर। दिस इज वन डेटिव बॉन्ड, दिस इज अ second dative bond. So two dative bonds are formed in opposite direction। और बाकी जो डॉट क्रॉस हैं वो तो तीन कोवलेंट बॉन्ड पहले एक मॉलिक्यूल में भी थे, दूसरे में भी थे, वो 6 कोवलेंट बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। ठीक है जी। और दो डेटिव बॉन्ड भी बन जाएंगे। बट रिमेंबर, डेटिव बॉन्ड हैज सेम प्रॉपर्टीज एज अ कोवलेंट बॉन्ड। सो इफ यू सी कि हम डेटिव बॉन्ड को हम एरो से दिखा रहे हैं, एंड एरो इज डायरेक्टेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। बट केमिस्ट सेज कि इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि कोवलेंट की हैं, so there is no need to draw arrow, there is no need to draw arrow। arrow भी हम दिखा रहे हैं, but जब when we go into the organic chemistry we will usually do not show arrows and we will draw a single line to show a dative bond। तो सिंगल लाइन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की भी है, डेटिव बॉन्ड की भी है। बट राइट नाउ वी आर मोर कॉन्स्पिकुअस, मेकिंग इट मोर कॉन्स्पिकुअस। हम एरो डाल रहे हैं, बट एरो डालें या ना डालें, dative covalent bond and normal covalent bond has no difference in their chemical properties. They are exactly the same because they are both they are sharing of electrons. They are formed between two non-metal atoms। Their bond is not as strong as ionic bond। तो इनके वजह से इनकी प्रॉपर्टीज वही हैं जो कोवलेंट बॉन्ड की है, बस बनने का तरीका फर्क था। एक एटम जो आया उसने कहा मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए है ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, आई एम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और अ मॉलिक्यूल और एन आयन जैसे हाइड्रोजन आयन था। और दूसरा मॉलिक्यूल में जो कोई सेंट्रल एटम होता है या उसके साइड वाले एटम होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास लोन पेयर है, हम आपको डोनेट करेंगे लेकिन शेयर करेंगे, डोनेट करेंगे लेकिन शेयर करेंगे। और वो जब शेयरिंग होती है तो किसी का इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता किसी, ठीक है। और शेयरिंग से जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। So there is another example of dative covalent bond which is found between carbon and oxygen in carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऐसा होता है। उसमें तस्वीर कुछ उसकी डायग्राम कुछ यूं है कि कार्बन जो है इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन। लेट्स पुट इट अक्रॉस। तो हम इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। तो कार्बन हैज दिस, देन यहाँ पर वो क्या करता है, क्रॉस डॉट, देन क्रॉस डॉट, और ऑक्सीजन के साथ वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है जी। तो इस तरह ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी तो हमने सिर्फ उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं, डॉट डॉट एंड देन डॉट डॉट, और फिर उसके बाद ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ रखें तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर, अपना एक लोन पेयर वो दरमियान में ले आता है।
इस तरह करने से ऑक्सीजन के 8 पूरे रहते हैं, लेकिन कार्बन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। और फिर नई शक्ल कुछ यूँ बनती है कि कार्बन के जो है क्रॉस क्रॉस, ठीक है जी, कार्बन के क्रॉस क्रॉस, फिर यहाँ पर क्रॉस डॉट, यहाँ भी क्रॉस डॉट,